Hello students, here I'm making one video, very short video, and one by one I'm going to speak on each and every topic. So in first unit, functions, characteristics and development of English language. So you know that language is the medium of expression, right? So that's what are the functions, means how to use the language, what's the purpose of language, why language system is developed, so that this way you should think and write that language is the medium of communication, right? It is a expression, medium of expression, social interaction. These are the major points. Without language there is no social interaction. You can give recent example of Sunita Williams, Butch Wilmore, right? And then imagine, suppose there is no communication, and then definitely they would have died. But then I got to know, I listened about Sunita Williams, that they used to send positive notes, and ISRO and NASA continuous they were contact with these people, and then they used to console them that we are doing something for you. And that's why it was it was actually out of imagination that instead of 8 months they spent 8 days, they spent 9 months without any base, right? So it's actually unimaginable big, but which was possible because of language. uh, Due to because of language, they were given messages and all. So language plays a very crucial role in our life than a representation, right? So language is the representation of our thoughts, our feelings. Can you imagine that suppose there is no language, then we cannot number of songs and videos and reels and so many things. Then directives. So language is a medium. Language is used for instructions, for requests, for many things, right? Circular and all, right? Language is informative. Whole knowledge is because of language. You should focus on, you should underline. Then Gaganyaan, and then Chandrayaan uh, 3, Chandrayaan 4 is ready, right? Then L1, Aditya L1, these are the recent example, and all these are possible because of language. Then aesthetic, language uh, creates, and language, because of language we are able to express our thoughts and beauty, right? So that's a beautiful poems and all which make us realize about nature, about wonderful nature and all. So these are the functions of language. As far as characteristics are concerned, so that's a symbolic. First characteristic is language is symbolic. Symbol ही तो है, सारे alphabets are symbolic. So language is symbolic. Language is structured. Without order, if I say that a car, I have a, so that is not I have a car, because we have to follow the rules. Rules are made, though you rules are arbitrary, but we have to learn, we have to remember, and that is why we are familiar with this order only. Familiar to listen English in this order, that first subject, then verb, then object. So language is a structure. Any language, Hindi language, English, राम आम खाता है, तो subject, then object, then verb. So that Hindi grammar is different, English grammar is different, but language is a structure. Every language has its own structure. Then language is cultural transmission. How language come? So we had already seen that the history of English language, tribes came and then they started. So this is language, and language cannot be uh, separated from culture. So language comes with culture, right? So language and culture coexist, right? Then productive, 26 English letters are in number of
limitless work is done in all the direction, medical and laws and literature and language and knowledge and whatnot. So language is productive. Then language is displacement, right? So language talks about past, present, future, hypothetical situation, right? So that is displacement. Language, through language, we just go to past, present, future, and any hypothetical situation. That is called displacement. Language is social. The more you are apt in language, communication skills. Why communication skills is on demand? So that you will become social, and then you we and more polish, right? And that is why language is social. Then arbitrary, language is decided by someone, right? So that's the connection between a word and then uh, very many example, like look, look, and root, root. Why this is pronounced as look, and why root pronounced as root, right? So that is also root, but no, because which is arbitrary. So same example you can say look and root, right? Double o, but pronounced differently because that is decided, which is called arbitrary. Then language is vocal, right? So language is spoken, that is written and spoken, है ना? And language is dynamic. Then language is non-instinctive, that is not inborn, we have to learn. So these are the characteristics of language. Okay, now next is the that is development of English language. I had already discussed that from 450, before 450, three uh, three tribes, Germanic tribes, came from North Sea to Britain, and they were Angles, Saxons, and Jutes. Angels were more, and Angels came from England, and that language was known as English, Englisc, है ना? Then when they attacked in Britain, one place, so that they pushed local people, natives, है ना? And then pushed, and they had to settle, local natives had to settle to west and east probably, वो देख लेना आप लोग क्या है. And then they are right now new places I have told. I right now I'm not getting. So these were the places: Wales, Scotland, and one more, Ireland. So they had settled in Ireland, and then local people used to speak Celtic or Celtish, right? But then they were compelled to leave. उनको खदेड़ दिया वहाँ से, और ये खुद जम गए. और 450 to 1100 काफ़ी लंबा टाइम इन्होंने, दे स्पेंड जनरेशन एंड जनरेशन, एंड दे केम सो मैनी. तो इंग्लैंड से आए थे, तो इन्होंने उस प्लेस का नाम दे हैड केप्ट इंग्लैंड, एंड द लैंग्वेज वाज नोन एज इंग्लिश. इंग्लिश बोलते थे तो इंग्लिश कर दिया. तो ये वहाँ के कुछ कैल्टिश भी है उसमें मिक्स करके, पर इन लोग, अब इनकी जो लैंग्वेज थी एंजल, सेक्सन और जूट्स की, वो काफ़ी मैच करती थी. तो देन दे सेट, इतना 500-600 ईयर्स में उन्होंने, दे सेट वन लैंग्वेज, एंड विच वॉज known as Old English. And from Old English, B is strong and water, you can remember. These were taken from Old English. But now Old English is totally, modern English is totally changed from Old English. Even local people cannot able to understand, right? So that was the Old English. अब वो चली रही थी, another attack. तो another attack, विलियम द कॉन्करर. तो वो क्या था, ही वॉज नोन एज किंग ऑफ नॉर्मेंडी, देख लेना वो क्या था. तो ही अटैक्ड अलॉन्ग विद कंप्लीट फुल बिग आर्मी, वो आ गया.
तो जो ब्रिटेन में इतने साल से देवर रूलिंग, ये अपना राज्य कर रहे थे, तो दैन देवर थ्रोन, अब इनका टाइम भागने का आया. एंड देन व्हेन दे केम, सो दे ब्रॉट दैट्स, मैं भूल जाऊँ उसके पहले प्लीज़ मेक दैट चार्ट, वो ज़रूर बनाना, जो कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस ज़रूर बना कर आना. वो तो वो उसमें उन्होंने लैटिन लेकर आए थे, फ्रेंच लेके आए थे, देख लेना शायद फ्रेंच लेके आए थे. तो दैन दे दे अब वहाँ पर बिकॉज दे वर रूलिंग एंड दैट्स वाई दे डोमिनेटेड लोकल पीपल. एंड फ्रेंच, हाँ फ्रेंच, एंड फ्रेंच वॉज नोन फॉर हाई क्लास, एलिट क्लास, रूलिंग बिजनेस क्लास, रूलिंग क्लास, एलिट. जो तो बिकॉज ऑफ क्लास, जेंडर, बिकॉज ऑफ लैंग्वेज, सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू टू, है ना. तो फ्रेंच वॉज स्पीकिंग बाय elite class and English by common people, right, lower class we can say. But as language struggles, आज भी आप देख रहे हो, you can give the example of Tamil Nadu, language war is going on. So then in 14th century, when Geoffrey Chaucer was writing, he was born I think 1564 something, नहीं 1340, हाँ 1340, तो वो बड़ा हो गया. एंड देन ही रोट कैंटरबरी टेल्स. सो दैट कैंटरबरी टेल्स एंड अदर famous works were done, and Geoffrey Chaucer is known as modern of English, father of modern English and father of English literature. So he had written 124 tales in Canterbury Tales. 100 are still not legible, but 24 are legible. तो फिर उन्होंने वहाँ से जो लैंग्वेज है वो फिर से इंग्लिश का बोलबाला हो गया. बट दिस टाइम इंग्लिश केम विद फ्रेंच. मैनी वर्ड्स हैव बीन एक्सेप्टेड in English, and that's why that old English was known as Middle English. क्योंकि अब भाई कुछ फ्रेंच भी नया फॉर्म में इंग्लिश आ गई थी, तो ब्लेंडिंग ऑफ फ्रेंच है ना, फ्रेंच के साथ आई थी. दैट्स वाई ओल्ड इंग्लिश वॉज नोन एज मिडिल इंग्लिश. फिर वो चल ही रहा था. फिर लास्ट फेज़ आया. लास्ट फेज़ वॉज 1500 से 1800, शायद जितना भी है बेटा वो एरा देख लेना आप. एंड देन 1500 शायद 1800, तो दैट वॉज मॉडर्न एरा, अर्ली मॉडर्न लैंग्वेज. अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में क्या हुआ? अर्ली मॉडर्न इंग्लिश में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू आया, दैट इज़ ग्रेट वॉवल शिफ्ट. ये बहुत अच्छे से याद रखना. क्यों? क्योंकि पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड टू स्पीक राग लगा लगा के बोलना. दे डोंट वॉन्ट टू स्पेंड मच टाइम फॉर स्पीकिंग, एंड दैट्स वाई they have accepted short vowels, shorter and shorter vowels. They wanted to speak. This was the very big breakthrough which came, big change, sea change came into Middle English, great vowel shift. So that is why it was known as early modern English. दैन लेट मॉडर्न इंग्लिश या लेटर मॉडर्न इंग्लिश. लेट मॉडर्न इंग्लिश में क्या हुआ? सो देयर वर टू रीजन्स स्पेशली. रेनेसा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, एंड नंबर 2 टेक्नोलॉजी. एंड बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन many new things were invented. So then printing press played a very important role, because mass production was there, and because of mass production, number of books, and then cheaper books, and then they were in hand of poor people, and poor people started reading, understanding Bible, and this way people were learned. And then in different direction, all the direction, there was innovation, creation, right? And that's why even in scientific inventions and all, so that is why what happened, one day it was great, after some time it was visible,
and people were able to see the lot of change, and then that language was known as modern English, late modern English. And technology brought boom, and because of technology every day new words are invented, right? So that was the dictionary, number of dictionary, वन बाय वन. फर्स्ट डिक्शनरी वॉज जस्ट, उसमें कोई अल्फ़ाबेटिकल नहीं था, लेकिन बाद में अल्फ़ाबेटिकल डिक्शनरी भी आ गई. तो फर्स्ट डिक्शनरी वॉज नॉर्मल डिक्शनरी, सेकेंड वॉज, वो देख लेना पूरा, सेकेंड वॉज इन्वेंटेड. दैट थर्ड डिक्शनरी 75 में सैमुअल जॉनसन प्रॉपरली एक पूरा अरेंजमेंट अल्फ़ाबेटिकल डिक्शनरी, देन वेबस्टर्स डिक्शनरी, देन कैम्ब्रिज डिक्शनरी, और भी है ना, हॉर्नबी बहुत सारे. इसी के साथ साथ प्रिंटिंग प्रेस आई, और भी बहुत सारे अलग अलग. हाँ, न्यूज़पेपर आ गए, फर्स्ट न्यूज़पेपर वॉज रिलीज, देख लेना, वो सब मैंने भेजा है ना. दिस वे दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. फिर सिंक्रोनिक डायक्रॉनिक क्या है? सिंक्रोनिक डायक्रॉनिक एक किसी भी लैंग्वेज की डिफरेंट अप्रोचेस है. एक अप्रोच है, मतलब लैंग्वेज की स्टडी की अप्रोचेस है ये, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज. एक स्टडी ऑफ लैंग्वेज जिसमें आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, आप करंट फॉर्म चाहते हो, उस समय क्या हुआ था, तो किसी एक पीरियड की स्टडी करते हो, दैट इज़ सिंक्रोनिक. जिसके दो नाम भी याद रखो, जिसको डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं, सिंक्रोनिक को ही डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं, और सिंक्रोनिक को ही स्टैटिक भी बोलते हैं. क्योंकि एक स्टैटिक मतलब फिक्स, कि आप सिर्फ इस पीरियड की स्टडी कर रहे हो, इस पीरियड की लैंग्वेज की स्टडी कर रहे हो. आप आज करंट की कर रहे हो, या आप सिर्फ चौसर के टाइम की है ना, तो आपने चौसस एरा इंग्लिश है ना, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है ना, और आपने लिखा, या क्लिनिकल स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम चौसर्स, बस ओके, चौसर्स एरा. चौसर्स एरा का जो अगर आप इंग्लिश की स्टडी करते हो तो दैट इज़ फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर. चौसर्स एरा की स्टडी करते हो तो दैट इज़ कॉल्ड सिंक्रोनिक. आपने पढ़ा, आपने किया साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, शेक्सपियरियन इंग्लिश लैंग्वेज. तो शेक्सपियर ने अपने 37 ड्रामा में कैसे क्या लैंग्वेज यूज़ कर, उसकी साइंटिफिक स्टडी करोगे आप, तो दैट अप्रोच. साइंटिफिक स्टडी में क्या करोगे, तो साइंटिफिक स्टडी में वी हैव टू स्टडी वर्ड्स है ना, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फीम, कैसे कौन से वर्ड्स थे, कौन से सफिक्स थे, कौन से अफिक्स थे, कौन से प्रीफिक्स थे, है ना, कैसे वर्ड्स का फॉर्मेशन होता था, व्हाट ग्रामर वाज फॉलोड, व्हाट रूल्स वर देयर, राइट, व्हाट शेल विल में डिफरेंस मैंने बताया पहले था, तो दैट दे वर वेरी मच स्ट्रिक्ट फॉर विल एंड शेल एंड नंबर ऑफ वर्ड्स एंड ऑल. तो वो पूरी स्टडी वॉज इज़ कॉल्ड सिंक्रोनिक. कि भाई एक पीरियड की कर रहे हो आप, आपको उसके ना बिफोर शेक्सपियर कोई मतलब है ना आफ्टर शेक्सपियर. पर अगर आप पूरे हिस्ट्री पढ़ रहे हो किसी एरा की, किसी लैंग्वेज की, मान लो आप इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री से पढ़ रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड डायक्रॉनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज. ये जो अप्रोच है उसको कहते हैं डायक्रॉनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी करना, और वो भी हिस्टोरिकल स्टडी करना, दैट इज़ कॉल्ड डायक्रॉनिक. सिंपल. मैंने इसका वीडियो बनाया है, देख लेना. अभी मैं ज़्यादा बताऊंगी तो फिर आप कंफ्यूज होगे. अब है फोनोलॉजी और मॉर्फोलॉजी. फोनोलॉजी क्या है? फोनोलॉजी आप बहुत सिंपल तरीके से समझो तो फोनोलॉजी साउंड को आप पॉलिश, अपनी टंग कैसे पॉलिश करते हैं, आज आप बस ऐसा समझो उसको. टंग पॉलिश करने के लिए बच्चे की टंग माँ पॉलिश करवाती है, बोलती श बोलो, स नहीं बोलना, तो धीरे धीरे वो श को स और श में डिफरेंस करना. मेला है, ये मेला है, तो उसको बोलते हैं मेरा है बोलो, ल नहीं बोलना, तो मेरा है करने लगता है वो. तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जो उसके ब्रेन में वो खुद ही इम्बाइब करता है साउंड्स को और रूल्स को एब्जॉर्ब करता है.
दैट होल प्रोसेस इज़ नोन एज फोनोलॉजी. फोनोलॉजी साउंड की स्टडी, राइट. कैसे कैसे साउंड को रिसीव करता है, हमने क्लास में डिस्कस किया है. इंसर्शन, तो कहता है आई वॉन्ट टू नहीं, हॉट कॉफ़ी. तो हॉट कॉफ़ी जल्दी जल्दी, हम हर बार ऐसा नहीं बोलते. मैं आपके घर आई और मैंने बोला येस आई वॉन्ट टू अ कप ऑफ हॉट कॉफ़ी, ऐसा तो नहीं बोलते. आई वॉन्ट टू अ कप ऑफ हॉट कॉफ़ी एक साथ मिल गया. तो ऐसा जब मिक्स करके जो लैंग्वेज सुनाई देती है उसमें कुछ वर्ड्स डिलीट हो जाते हैं, तो विच इज़ कॉल्ड डिलीशन. हैमस्टर देखा था हमने जिसमें पी नहीं आता लेकिन पी का साउंड सुनाई देता है, तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इंसर्शन, है ना. ये सारी स्टडी जहाँ आवाज़ कैसे आती है, मैं इसका इतना डिटेल अभी नहीं बता पाऊँगी, तो दैट इज़ कॉल्ड फोनोलॉजी. और बच्चे पूछ रहे थे कि मैम फोनेटिक्स में क्या डिफरेंस है. फिर फोनेटिक्स पूरा मैकेनिकल है. फोनेटिक्स में आपको साउंड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कौन से आर्टिकुलेटर्स यूज़ कर रहे हो, मतलब कौन से इंस्ट्रूमेंट है आपके पास. नए नए फ़ोन हैं, आप लोग के पास भी है, तो फ़ोन के नए नए उसमें जितने फीचर्स हैं ना, उससे बहुत अच्छी आवाज़ आती है. उससे बहुत, वो जो आर्टिकुलेटर्स है, कोई बहुत अच्छा बोलता है, कोई कम अच्छा बोलता है, किसी की टंग बहुत पॉलिश, क्योंकि उसके जो आर्टिकुलेटर्स हैं एक्टिव और पैसिव. आप बार बार सारे बच्चे ऑर्गन्स ऑफ स्पीच की डायग्राम बना के ही आना, वो 3-4 जगह बना सकते हो आप, है ना. तो उसमें वही बताया, अपर लिप, लोअर लिप, अपर टीथ, लोअर टंग, ये सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, ये सब ट्रैक किया, है ना, इसोफेगस. और उसी के थ्रू आप बताना यहाँ पे वोकल कॉर्ड, है ना, वोकल कॉर्ड से कैसे एयर फ्लो होती है, कैसे बर्स्ट आउट होती है. ये सारा कुछ स्टडी फोनेटिक्स की है. पर फोनोलॉजी बताती है कि भाई मशीन की स्पेलिंग है MACHINE, तो इसमें CH इज़ प्रोनाउंस्ड एज श, लेकिन मैकेनिकल में CH इज़ प्रोनाउंस्ड एज क, क्योंकि वो साउंड बदल गया, उस स्पेलिंग में साउंड चेंज हो गया. तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन जो है, उसकी वैरायटी बता देना, उसका प्रोसेस बता देना. दिस इज़ द स्टडी ऑफ फोनोलॉजी. अब आते हैं मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी मतलब वर्ड्स की स्टडी करना. इसमें सबसे अच्छा, आप बाकी डिटेल में नहीं बताऊंगी, नहीं तो बहुत लंबा होगा. मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड्स. अब वर्ड्स में क्या, कुछ वर्ड्स तो रूट वर्ड्स हैं जो सिंगल या दे कैन स्टैंड अलोन. फैन, सिंग, राइट, वॉक, राइट, ब्यूटीफुल, ये सारे वर्ड्स अपने आप में, ब्यूटी है ना, ब्यूटीफुल नहीं, ब्यूटी, ये वर्ड्स अपने आप में स्टैंड करते हैं. तो दीज आर द बेस वर्ड्स और रूट वर्ड्स. कभी कभी इनके पहले या बीच में या आखिरी में वर्ड्स लगा के हम नए वर्ड्स बनाते हैं. उसके कारण कभी कभी वो वर्ड की या तो ग्रामेटिकल पोजीशन चेंज हो जाती है, कभी नहीं भी होती है, जिसको हम कहते हैं बाउंड मॉर्फिम. ये तो फ्री मॉर्फिम है. कौन से, जो द वर्ड्स विच कैन स्टैंड अलोन आर कॉल्ड फ्री मॉर्फिम, एंड द वर्ड्स विच कैन नॉट स्टैंड अलोन आर कॉल्ड बाउंड मॉर्फिम, जिसकी दो वैरायटी है, इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल, है ना. जो डेरिवेशनल है उसमें डेराइव होगा तो नेचुरली उसमें ग्रामर की पोजीशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो चेंज हो जाता है. इन्फ्लेक्शनल में सिर्फ वो बस मिक्स करके आप नया वर्ड बनाते हो, तो उसको बता देना, है ना. अब देखो, मैं यहाँ थोड़ा रिकॉल करवाऊँ. पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने, 8 है. नाउन, प्रोनाउन, है ना, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन. नाउन, प्रोनाउन, नाउन से प्रोनाउन इसमें से नहीं बनता. जब आप प्रीफिक्स, अफिक्स और सफिक्स की बात करते हो, तो प्रीफिक्स लगाने से जैसे आपने एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर दिया तो ऑपोजिट हो जाएगा, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, है ना. लेकिन अगर आपने कहा एक्टिवेशन, अगर आपने कहा पावर, पावरफुल और पावरफुलनेस, तो यहाँ पर फुल और फुलनेस, फुल और नेस दोनों ही सफिक्स है ना. तो पावर, पावर क्या है, तो पावर है दैट इज़ नाउन.
और उसमें से अगर आपने कहा पावरफुल तो एडजेक्टिव बन गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। उस तरह से आप बताना कि ईडी जो है वो एक बाउंड मॉर्फीम है। शन, इटी, बहुत सारे नेस, राइट, ये सारे कौन से सफिक्सेस हैं। अगर हम इनफिक्स भी बोलते हैं या मिडिल में जो लगाते हैं अफिक्स भी बोलते हैं, वो उसका एग्जाम्पल है ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ। ये तो सारे रिलेशंस हो गए। कमांडर इन चीफ, तो इन सब में बीच में इन लगा रहे हो, ये मिडिल वाला अफिक्स है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आप दे देना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ कल का पेपर हो, परसों का डालो। सब कुछ आप अपने रोज के रूटीन से उठाना। एवरीथिंग कैन बी पिक्ड अप फ्रॉम योर डेली लाइफ। और उसमें कुछ भी नहीं, आपको एग्जाम्पल्स जितने दोगे उतने अच्छे मार्क मिलेंगे। फिर वर्ड एक्सेंट है। एक्सेंट में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ना कि आई विल सिक्योर गुड मार्क्स। अगर आपने ऐसा बोला और आप बहुत ऑथेंटिकेटेड होके बोल रहे हो, आप बड़े प्रेशराइज, आप बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, तो आपने कहा आई विल सिक्योर गुड मार्क्स। आई एम गोइंग टू गिव नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। आपने बोला आई एम इक्विप्ड विथ सो मैनी एग्जाम्पल्स। तो ये सो मैनी आपने जो लगाया ना, ये एक्सेंट है। तो एक्सेंट में क्या करते हैं, हम कुछ वर्ड्स को ज़्यादा एम्फेसाइज करके बोलते हैं, कुछ वर्ड्स को लो टोन में बोलते हैं, या कभी कभी एक ही वर्ड में भी हम प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रेस लगाते हैं। मैंने बोला डीएक्टिवेट। कल मैं किसी की बात कोई बता रहा था कि किसी को कोरोना हुआ था, तो मैंने उसका फेसबुक जल्दी जल्दी डिलीट किया, क्योंकि वो उसकी वाइफ एडमिट थी, वो किसी का बता रहा था। तो उसने कहा कि क्यों, क्योंकि वो फेसबुक में उस टाइम में बहुत ख़राब मैसेज आ रहे थे। तो उसने कहा कि आई डीएक्टिवेट, राइट, आई डिलीट ऑल द मैसेज। तो डी क्या हो गया यहाँ, हाइपर हो गया। क्यों, क्योंकि जब हम किसी वर्ड को, और लीड क्या हो गया, लो उसमें चला गया। तो डी के ऊपर स्ट्रेस मार्क जो है वो प्राइमरी स्ट्रेस कहते हैं, है ना। तो मैंने कहा डिलीटेड, तो मैं जब डिलीट में प्रेस कर रही हूँ, फोकस कर रही हूँ, तो वो क्या हो गया, दैट इज़ प्राइमरी स्ट्रेस बोलते हैं उसको, स्ट्रेस मार्क लगाते हैं। मैंने बोला कि डिज़ोल्व्ड इट, तो डी। फिर से मैंने बोला जगरनॉट, तो जगरनॉट आपको पता है, जगरनॉट इज़ ह्यूज, वेरी बिग, तो नॉट में आएगा प्राइमरी स्ट्रेस। तो ऐसे वर्ड्स में के बीच में भी स्ट्रेस लगाते हैं या पूरे सेंटेंस में भी स्ट्रेस लगाते हैं, उसको एक्सेंट कहते हैं। रिदम नोट्स होते हैं, है ना। आरोह अवरोह आप म्यूज़िक का एग्जाम्पल दे सकते हो। सा रे गा मा, बिल्कुल लिख सकते हो ये एग्जाम्पल। सा रे गा मा पा धा नी सा। तो आप पहला सा और दूसरे सा में देखो, पहला एकदम लो है, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो ऊपर चले गए आप बिल्कुल आखिरी वाले सा, जबकि दोनों सेम साउंड है। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रिदम, है ना। फिर ट्विंकल ट्विंकल सबसे अच्छा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो आर एंड आर जो हम राइम स्कीम बनाते हैं, दैट इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रेस मार्क्स एंड फुट। उस स्ट्रेस मार्क से ही फुट बनता है, उसी से मीटर बनता है, और उसी से रिदम सेट होती है। तो अगर आप बता सकते हो तो बता देना। फिर आते हैं हम सिलेबल और सिलेबल काउंटिंग। आप एक एग्जाम्पल याद रखो, किसी भी एक एग्जाम्पल। आपने लिखा रूट, तो रूट में कितने सिलेबल है, 2 सिलेबल है। आर और यू की मात्रा लगाया आपने, तो एक ही बनाइए, रू और ट, है ना। 3 सिलेबल में अगर आपने लिखा कि थिंकिंग, है ना, ये थोड़ा टफ हो जाएगा। एग्जाम नहीं, हाँ, सिंपल, तो सिम, है ना। तो सिंपल में पल, फिर वो है ना, वो एक ही काउंट होगा। और बताती हूँ मैं, चीटिंग, तो आपने कहा ची, बड़ी की मात्रा, ची टिंग, है ना।
तो टिंग, अब वो उसमें भी टिंग, TI और है ना, थ्री सिलेबल वर्ड है ये, राइट। मैं अभी इसका बता दूंगी आपको, पर सिलेबल काउंटिंग हमने देखा था अलग अलग मेथड्स, यहाँ पे करूँगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पर एक आधी बता देती हूँ। चिन डाउन, है ना। फिर हमने वो एक प्लस और माइनस करने वाला देखा था, नुपुर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था कि कब, जैसे कि आपने लिखा क्यूट, तो इसमें ई जो है वो ई न्यूक्लियस होते हुए भी काउंट नहीं होगा, क्योंकि क्यूटे नहीं है वो, क्यूट, तो इसमें माइनस हो जाएगा, है ना। अब वो मैं इसको डिटेल में बताऊंगी, आप कंफ्यूज होगे। लेकिन अगर मैंने बोला करली नहीं, नाइस, अरे जिसमें ए की मात्रा लग जाती है ई लगाने से, जैसे कि बेयर में तो नहीं लगता, बेयर में भी, जैसे अगर आपने कहा मैजिकल ई है, अभी मुझे तो नहीं याद आ रहा, पर वो जिसमें ई लगने से ए की मात्रा लग जाती है, उसको कहते हैं हम, उसको काउंट करते हैं। अब वो इतना डिटेल अभी नहीं बता पाऊँगी, पर आप लोग देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एम्बिग्विटी। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, पर सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल याद रखो, यू विल फेल ओनली व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। जबकि हमारे कॉलेज में लिखा है यू ओनली फेल, you only fail when you stop trying, right। तो you fail only when you stop trying, तो ये ओनली की पोजीशन चेंज होने से एम्बिग्विटी आती है। एम्बिग्विटी वर्ड्स के प्रॉपर यूज़ नहीं करने से आती है, एम्बिग्विटी सेंटेंस फ्रेमिंग में आती है, एम्बिग्विटी अगर आपने किसी वर्ड का अलग अलग मीनिंग है और उसको अगर आपने गलत तरीके से, आई एम स्टैंडिंग ऑन बैंक, अगर कंटेक्स्ट क्लियर नहीं किया तो कौन से बैंक में, और कुछ तो कॉमन एम्बिग्विटी है टेलीस्कोप वाला, और यही लर्न कर लो। हर एक, मैंने कितना टेक्स्ट पढ़ा है, पर कुछ कॉमन है, ओल्ड मैन और वीमेन वाला, टेलीस्कोप वाला, बैंक वाले, ये सारे दीज आर द वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स, सो यू शुड लर्न ऑल दीज, राइट। उसके बाद ट्रांसलेशन, बहुत कंक्लूजन आपके ट्रांसलेशन में ये होना चाहिए कि ट्रांसलेशन ह्यूमन ट्रांसलेशन है, मशीन ट्रांसलेशन है, हाइब्रिड मोड है। लेकिन ट्रांसलेशन में मैंने अभी आपको एक भेजा था, विनोद कुमार शुक्ला, रायपुर का ऑथर है, उनके बारे में उन्होंने खुद ही कहा कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है। वो हिंदी के ऑथर हैं, लेकिन इंग्लिश वाले बच्चे उनको ट्रांसलेशन उनका बहुत सुनते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत लोगों ने, इंग्लिश ऑथर ने, किसी ने लिखा कि मुझे उनके वर्क्स बहुत अच्छे लगे, तो मैंने उसको ट्रांसलेट, और बड़े सिंपल वर्ड्स में वो हिंदी में लिख देते हैं, लेकिन जब मैं ट्रांसलेशन करने बैठा तो आई वॉज नॉट एबल टू ट्रांसलेट द फीलिंग्स, आई वॉज नॉट एबल टू ट्रांसलेट द इमोशंस which cannot be easily translated by machine softwares, right? It's a great challenge which can be done only by human being, human brain. So translation ka conclusion should be whatever machine softwares are there, but it cannot surpass human brain. This is the conclusion you should underline when you deal with this question. Now IC analysis and IPA symbols. Just now I have made one video on IPA symbols, so I am going to share it with you. If you can refer the same, right? Otherwise, here I would like to tell you that do the same practice, 5 words के 25 words लिखना, A B C D E F G H I J K L M N ऊपर, Z को लास्ट में लिखना। इसमें से आपको पता है IPA सिंबल्स हमेशा स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं हम, एंड बार के अंदर करते हैं या स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट में करते हैं। तो आप क्या करना कि B
ऐसे करके उसमें कौन कौन से वर्ड्स, 16 वर्ड्स जो है वो एज इट इज़, 16 लेटर्स जो हैं वो IPA सिंबल्स में एज इट इज़ एक्सेप्ट हो गए। लेकिन कौन से कैंसिल हो गए? C कैंसिल हो गया, राइट, Q कैंसिल हो गया, X कैंसिल हो गया, J कैंसिल हो गया और Y कैंसिल हो गया। ये वर्ड्स क्यों कैंसिल हो गए? क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन है इसमें, क्योंकि इनका डायरेक्ट करस्पॉन्डेंस नहीं है। तो उन्होंने 16 तो ये एक्सेप्टेबल है और 8 न्यू वर्ड्स दिए हैं, जिसमें Z जो जज वाला हमने देखा था और एक Z अकेला प्लेजर वाला देखा था। फिर हमने थिंकिंग का थीटा देखा था और दे देखा था, और फिर इंगा वाला जिसमें जिस स्पेलिंग में NG आए जो कि नेज़ल साउंड है वो देखा था, है ना। उसके बाद फिर य जो य है, य वो छोटा जो स्मॉल ज है, जे है, उसको य प्रोनाउंस करते हैं, है ना। और च और श, च और श हमने ऐसे 8 नए सिंबल है, मैंने उसका वीडियो बनाया है, वो देख लेना आप लोग। जहाँ तक मोनोफ्थोंग और डिप्थोंग की बात है, आपको सिर्फ 12 मोनोफ्थोंग्स याद रखना है। 12 मोनोफ्थोंग्स में बिल्कुल बर्डन मत लो, मैंने उसमें बताया है आपको। ई तो एक ही मात्रा के लिए, और IOU में छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा बड़ी की, वो याद रखना। ए के 5 वर्जन हैं, जो वर्जन मैंने अभी आपको उसमें भेजे हैं, देख लेना उसको, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं लास्ट में IC एनालिसिस। बिल्कुल बर्डन मत लेना, आपसे जैसा बने वैसा करना, और नहीं तो ब्रैकेटिंग करके कर देना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल, क्योंकि उसमें हमने देखा था चैलेंजेस में कि अभी भी इम्परेटिव सेंटेंसेस में IC एनालिसिस क्लियर नहीं है। हमने ये भी देखा था कि एक्टिव पैसिव में पैसिव कंस्ट्रक्शन, पैसिवाइजेशन या पैसिव सेंटेंसेस में IC एनालिसिस इज़ नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपर एनालिसिस, इज़ नॉट एबल टू डू प्रॉपर एनालिसिस। तो आप भी उसका प्रिविलेज ले सकते हो कि फॉर मैनी sentences IC analysis is not able to justify the sentence or able to analyze the sentence properly। तो बस ये है उसका पर्पस। IC एनालिसिस का है टू नो द वर्ड्स पोजीशन एंड रिलेशनशिप विथ वन अनदर। एक नाउन का, सब्जेक्ट का, आप उसका लास्ट में एग्जाम्पल दे सकते हो कि नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, बट subject is also noun and pronoun, or object is also noun and pronoun. But why first noun and pronoun are called subject? Because they are doer. And why last noun and pronouns are called object? Because they are receiver. जो doer है उसका असर receiver में होता है। That's why लास्ट वाले वर्ब के बाद जब noun और pronoun, when noun और pronoun placed after the verb, so they receive verb's effect, वो verb का effect को receive करते हैं, इसीलिए उनको object कहते हैं। और लास्ट में आप एक और बता सकते हो इम्परेटिव सेंटेंस। सेंटेंसेस की बहुत सारी वैरायटी आप लिख सकते हो कि सेंटेंसेस को नॉर्मली अगर हम नॉर्मली क्लासीफाई करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, है ना, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ऐसे 4 होते हैं। फिर सेंटेंस की दूसरी वैरायटी देखते हैं तो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जिसको जो डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि इसमें यू जो है वो इम्प्लाइड है। इम्प्लाइड मतलब ऑलरेडी है, उसको एक्सप्रेस नहीं किया जाता। तो क्लोज द डोर, डोंट गो देयर, है ना। तो ये वाले सारे, इंसर्ट द पेन ड्राइव, तो ये इंस्ट्रक्शन या ऐसे कुछ, तो ये सारे इनको इम्परेटिव कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं। वर्ब एंड ऑब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट यू ही है इसलिए यू को एक्सप्रेस नहीं, क्योंकि सारे में यू ही कॉमन सब्जेक्ट होता है, और इनको इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। फिर एक और वैरायटी होती कंडीशनल सेंटेंसेस, जिसकी 3 वैरायटी है। तो आप इफ़ वाले जितने सेंटेंस हैं वो सब कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, है ना। और एक और लास्ट वैरायटी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये सारे सेंटेंसेस बता सकते हैं, जिसमें सिंपल सेंटेंस,
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इफ़ वाला कोई भी है ना, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल सिक्योर गुड मार्क्स, राइट। तो इसमें क्लॉजेस दो क्लॉजेस होते हैं। जितने भी इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें दो क्लॉज होते हैं। एक क्लॉज डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर कितने भी क्लॉजेस डिपेंड हो सकते हैं। फिर तीसरा कंपाउंड सेंटेंस, जो दो सिंपल सेंटेंस को जब हम कंपाउंड करते हैं, मतलब जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो उसको कंपाउंड कहते हैं। जैसे आपने कहा कि आई विल स्टडी देन आई विल टेक सम रेस्ट, है ना, तो एंड लगा दिया आपने, तो ये कंपाउंड सेंटेंस होता है। बस इस तरह से है। और आईसी एनालिसिस जो हमने पढ़ा है पूरा फ्रेज के ऊपर डिपेंड है, और हर सेंटेंस विल बी डिवाइडेड इनटू नाउन फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज या सब्जेक्टिव फ्रेज, और दैट इज़ द अरे यार क्या बोलते हैं वो वर्ब वाला, भूल देखो ऐसे अभी इतना, दैट्स अ प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट फ्रेज। या तो एक बात सब्जेक्ट या प्रेडिकेट कह दो, या सब्जेक्ट नाउन फ्रेज और वर्ब फ्रेज को, वर्ब फ्रेज को ही प्रेडिकेट फ्रेज कहते हैं। हालांकि प्रेडिकेट फ्रेज में और वर्ब फ्रेज में डिफरेंस है। वर्ब फ्रेज में सिर्फ वर्ब्स आते हैं, और कौन सी वर्ब्स आती है उसमें हेल्पिंग वर्ब हो सकती है और मेन वर्ब हो सकती है, या कभी कभी मेन वर्ब अकेले होती है और हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हेल्पिंग वर्ब में हैव, बीन, बीइंग, टोल्ड, ये सारे सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं, है ना। और फिर उसके बाद जहाँ वो होता है, अगर एडजेक्टिव है तो वो एडजेक्टिव। इसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है डिटेल में मत जाना, आपको जैसा समझ में आए वैसा पेपर करना, बट डोंट लीव एनीथिंग, हैव कॉन्फिडेंस, एंड ड्यूरिंग द एग्जाम जस्ट सपोज दैट येस आई कैन डू anything, because your paper is something, number of examples can be taken from daily routine, right? So that have confidence, और जितने examples, the more you equipped, the more you will give examples, the better marks you will get it. आपको you just have to furnish number of examples, right? You just have to give n number of, like, the many examples. So you should be equipped with number of examples, and the more you give example, the better marks you will secure. So thank you so much, all the best, bye.